हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ये चैप्टर आईआईटी जेईई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी दबाएं। चलिए करते हैं स्टार्ट। डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और इसमें सबसे पहले है डिफरेंशियल। Let y equal to fx is a function and delta x a small change in x, और इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा y स्मॉल चेंज है y में। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये है dy by dx. This can also be written as f dash x. It means delta y upon delta x can be written as f dash x plus epsilon. Epsilon tends to 0 as delta x tends to 0, or we can say delta y upon delta x equal to f dash x approximately. और delta y equal to f dash x into delta x approximately. देखिए ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी यूजफुल टू फाइंड ए स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये फॉर्मूला यूजफुल है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले है एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट चेंज, absolute change in x. It is also represented by dx. dx से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Now relative error, relative error, if delta x is the small change, then delta x upon x, this is a relative error, or it can also be written as dx upon x. Now percentage error, now percentage error, if delta is x absolute change, then delta x upon x into 100 represent percentage error in x, and this can also be written as dx upon x into 100. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है ना, अब हम इसकी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब है हमारे पास। The radius of a sphere shrinks from 10 to 9.8 centimeter. Find approximately decrease in its volume. जो चेंज इन रेडियस है वो श्रिंक हो गई है 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर, एंड वी आर टू फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। हियर r equal to 10 centimeter and r plus delta r equal to 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियली रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके बाद वो 9.8 सेंटीमीटर हो जाती है स्मॉल चेंज के बाद में।
So delta R equal to 0.2 centimeter. Now we are to find delta V. We are to find delta V. Delta V is dV by dr into delta R. Now V equal to 4 by 3 pi r cube. This is a sphere. The volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. Differentiating this with respect to R. So dV by dr equal to 4 by 3 pi. This is 3r square. ये कैंसिल हो गया. 4 pi r square. ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो dV by dr is 4 pi r square and delta r. Now substituting the values, r is 10 centimeter and delta r is 0.2. Rather it is minus 0.2 decrease हुआ है, तो delta r is minus 0.2 centimeter. So this will become ये 4 pi into 100, r is 10 centimeter into minus 0.2. ठीक है, and this will become what? 80 पाई. तो ये चेंज है वॉल्यूम में 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The pressure P and volume V of a gas are connected by the relation P V to the power 1.4 equal to constant. Find the percentage error in P corresponding to a decrease of half percent in V. We have to find the percentage increase in P corresponding to a half percent decrease in V. Now, here percentage decrease in V is dV by V into 100, and this is what? This is minus 1 by 2%. Minus times is because of decrease. To find percentage increase in P, so dP by P into 100. We have to find this. Now the relation between P and V is P V to the power 1.4 equal to K, taking log on both sides. Log of P plus 1.4 log of V equal to log of K. Now differentiating, this will become dP upon P plus 1.4 dV upon V equal to 0. And here dP upon P equal to minus 1.4 dV upon V. और दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो this will become percentage increase, and this will be minus 1.4, and the value of dV by V into 100 is minus 1 by 2. This is minus 1 by 2, so this will become 0.7%. If there is a decrease in V corresponding to an increase in P, अगर V कम होगा तो उसके corresponding P बढ़ जाएगा. ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. आउट करना यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा y इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x. देखिए जरा, एक प्रॉब्लम है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. तो हमें f 2.01 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ y equal to fx. Suppose this is the function and y plus delta y will become x plus delta x. For small change in x there will be a small change in y.
अगर x में डेल्टा x का स्मॉल चेंज हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में डेल्टा y का चेंज होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 और सबट्रैक्ट कर दें 2 माइनस 1, तो डेल्टा y विल बिकम f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, और यहां से हमारे पास f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू delta y plus fx, and the value of delta y is f dash x या dy by dx and the value of delta y is f dash x into delta x plus fx. Okay, now हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.01, ठीक है, एंड द फंक्शन इज और fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. दिस इज द फंक्शन. f dash x is what? f dash x is 8x प्लस 5, और ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस विल बिकम 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x प्लस fx. ओके, देखिए जरा, अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. x इक्वल टू 2 है और डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x इज 0.01, तो f x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दिस विल बिकम 21 इंटू डेल्टा x इज 0.01 plus fx is 4x square plus 5x plus 2 and the value of x is 2. तो we are to find f2. तो x की वैल्यू अगर 2 पुट कर लें तो ये 2 स्क्वायर इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 28. ये हुआ 0.21 प्लस 28, दिस विल बिकम 28.21. दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01. This is f 2.01. ओके, क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 401. देखिए अंडर रूट ऑफ 400 की वैल्यू हमें पता है 20 होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 401 की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 20 होगी, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? वी आर टू फाइंड दैट. ओके, हम क्या करते हैं कि जैसे ये अंडर रूट ऑफ 401 है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x. ये इस टाइप का फंक्शन है, और यहां पर 401 के नजदीक में जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं. तो हियर x इज 400 एंड डेल्टा x इज 1, तो दिस विल बिकम x प्लस डेल्टा x 401. नाउ y equal to under root x, this is the first equation, and y plus delta y equal to under root of x plus delta x. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें. डेल्टा x is a small change in x, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल चेंज इन y is डेल्टा y, तो ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और ये y प्लस डेल्टा y. तो 2 माइनस 1 डेल्टा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट ऑफ x, और यहां से अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमें मिलेगी डेल्टा y प्लस अंडर रूट ऑफ x, एंड डेल्टा y इज dy by dx इंटू डेल्टा x प्लस अंडर रूट ऑफ x. नाउ dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. यहां से इसको अगर डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज 1 by 2 अंडर रूट ऑफ x, और ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस विल बिकम डेल्टा x अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ x. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x इज 400 एंड डेल्टा x इज 1, ये 400 और ये 1, तो दिस विल बिकम 401 अंडर रूट ऑफ 401 इक्वल टू डेल्टा x इज 1 divided by x is 400, square root of 400 is 20, so this will become 2 into 20 plus square root of 400 is 20,
ये 40 एलसीएम हुआ, तो दिस विल बिकम 801 डिवाइडेड बाई 40, और इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20.25. दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 401. ये है 20.25. क्लियर है? तो ये था हमारा डिफरेंशियल एरर अप्रोक्सीमेशन और उस पर बेस्ड सम प्रॉब्लम. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ IIT JEE. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है इसके बाद भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको. कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं. और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं. थैंक यू.